السلام علیکم، میں محمد آصف عزیز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو کوشچن پیپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہار ٹیٹ 2013 کا کوشچن پیپر ہے۔ بہار ٹیٹ 2013 کا کوشچن پیپر ہے، ٹھیک ہے، کلاس 6 to 8 کا یہ کوشچن پیپر ہے۔ اس کا پیٹرن تھا کوشچن پیپر کا 30 CDP تھا اور اس میں 60 SST اور 60 لینگویج تھا، جس کا جو اردو جس نے انتخاب کیا تھا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کا اس کا پیٹرن تھا۔ ٹھیک ہے، 0 12 13 14 15 ٹوٹل 150 کوشچن۔ تو ہم لوگ اس میں جو اردو کا کوشچن تھا وہ دیکھیں گے۔ کل 60 سوالات تھے۔ یہ خاص کر کے جو ابھی جھارکھنڈ میں ٹیٹ ہونے والا ہے 6 to 8 کے لیے، اس کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا۔ کچھ اسی طرح کے کوشچن جھارکھنڈ ٹیٹ میں پوچھے جائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کا سوالات 2013 میں بہار ٹیٹ میں پوچھے گئے تھے اردو سے۔ سوال نمبر 91، چھڑی چھوٹی اور بچے برباد ہوئے۔ یہ کال ہے، یعنی کہ چھڑی کے بغیر پڑھائی ناممکن ہے، یا چھڑی کے بغیر پڑھائی علم کا، تعلیم کا صحیح طریقے سے، یعنی کہ بچوں کو سکھانے کے لیے چھڑی ضروری ہے نا۔ یہ مانا جاتا ہے قدیم تعلیم میں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی چھڑی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ اب ٹیچر جو ہے بچوں کو چھڑی دکھا کر پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ چھڑی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہی کوشچن ہے کہ چھڑی چھوٹی اور بچے برباد ہوئے۔ یہ کال کس کا ہے، یعنی یہ کس کا ماننا ہے کہ چھڑی کے بغیر تعلیم، اسکولوں میں تعلیم مطلب صحیح نہیں ہے، یعنی کہ چھڑی کا ہونا ضروری ہے اسکولوں میں تعلیم کے لیے۔ یہ کس کا ماننا ہے؟ تو والٹیئر، روسو، ارسطو، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ان میں سے کوئی نہیں، یعنی یہ تینوں جو دیا ہوا ہے ان تینوں کا ماننا ہے کہ چھڑی کا کوئی کام نہیں ہے اسکول میں تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ان میں سے کوئی نہیں، ڈی۔ سوال نمبر 92 مندرجہ ذیل میں کس حالت کو سب سے بہتر درجہ کہا جائے گا؟ آپشن کیا ہے؟ آپشن اے میں ہے استاد بول رہے ہوں اور بچے سن رہے ہوں، یعنی کلاس میں ٹیچر بول رہا ہو یعنی سبق پڑھا رہا ہو اور بچے سن رہے ہوں، یہ بہتر ہے۔ یا پھر بچے بیٹھے ہوں اور استاد اخبار پڑھ رہا ہو، یعنی کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوں اطمینان سے اور استاد یعنی ٹیچر کلاس میں اخبار پڑھ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یا بچے کھیل رہے ہوں اور استاد بیٹھے ہوں، یعنی بچے کھیل رہے ہوں اور استاد بیٹھے ہوں۔ اور ڈی میں کیا ہے؟ بچے خود سے کچھ کر رہے ہوں اور استاد ان کے لیے معاون ہو۔ تو یہ صحیح آنسر ہے، یعنی بچے خود سے کچھ ورک کر رہے ہوں اور استاد اس کے لیے معاون ہے، یعنی کہ مددگار ہے، ہیلپ کر رہا ہے۔ ٹیچر جو ہے اس بچوں کا ہیلپ کر رہا ہے، تو یہ ڈی آپشن صحیح ہے۔ نقل کر کے لکھنا ضروری ہے، یہ لکھنے کی صلاحیت میں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا کہ
लर्निंग का प्रोसेस है ना, पढ़ना यानी सीखने का प्रोसेस है, पढ़ना, पहले सुनना, पढ़ना और लिखना और बोलना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये लर्निंग का प्रोसेस है, इक्तिसाब का प्रोसेस है। उसी में से एक है, यानी ये जो लिखना है उसी का एक हम कह सकते हैं का एक खुसूसियत है नकल करना, नकल करके लिखना। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, लिखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए नकल भी एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन वो किस लिए है? खुशख़ती के लिए ज़रूरी है, या तख्लीकी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, या जवाबात सही लिखने के लिए ज़रूरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खुशख़ती के लिए ज़रूरी है नकल। यानी कि अगर हम नकल करके, देख करके लिखते हैं या बच्चों को देख करके लिखने की तरफ राग़िब कराते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर जो लिखने, उसकी हैंड राइटिंग है, खुशख़त का मतलब होता है अच्छी हैंड राइटिंग, तो उसकी हैंड राइटिंग है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा खुशख़ती के लिए नकल करना ज़रूरी माना जाता है। तालीम का मकसद क्या है? यानी तालीम का मकसद क्या है? ज़्यादा पैसा कमाना, बड़ा ओहदा पाना, एक अच्छा इंसान बनाना, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा एक अच्छा इंसान बनाना। तालीम का मकसद ये हरगिज़ नहीं है पैसा कमाना, बड़ा ओहदा पाना भी ये हरगिज़ नहीं है तालीम का मकसद, ठीक है। तालीम का मकसद, अहम मकसद है एक अच्छा इंसान बनाना, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। देखिए JTET में क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, उर्दू में 15 सवाल जो पूछे जाएंगे ना, इसी तरह का सवाल रहेगा। और जो सिलेबस दिया हुआ है JTET का, उससे क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, इसी तरह का सवाल रहेगा। 5 गो CDP से रहेगा, CDP उर्दू CDP से 5 क्वेश्चन, और उर्दू ग्रामर से 5 क्वेश्चन, और पैसेज से 5 क्वेश्चन यानी इक़्तिबास से, ठीक है। पैसेज से 5 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। और जब भी आप पेडागोजी का क्वेश्चन हल कर रहे हो तो बच्चे को सेंटर में रखना है, मरकज़ियत यानी बच्चों को देना है, ठीक है। हमेशा बच्चों का ख्याल रख के, यानी आपको एक टीचर की तरह सोचना है कि हम एक टीचर हैं, और हम टीचर हैं तो बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा वो ख्याल करके आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलिए 95 नंबर सवाल है, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को ये आज़ादी होती है कि वो हमेशा दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा दूसरों से झगड़े या अपनी पसंद के काम कर सके, या हमेशा खेलते रहे। तो ये क्या होगा इसका आंसर? यानी कि बच्चों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए स्कूल में कि वो अपनी पसंद से काम कर सके, अपने हिसाब से काम कर सके, ठीक है। 96 कदीम हिंदुस्तान में तालीम का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। यानी कदीम हिंदुस्तान में तालीम का हिफाजत किस तरह से किया गया था? मश्क करने और पढ़ने पर, समात और याददाश्त पर, खेलने और सयाही पर, गुरुकुल में रहने और पढ़ने पर। यानी कदीम हिंदुस्तान का अगर तालीमी निज़ाम आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि लोग गुरुकुल में रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। तो इसका सही आंसर डी होगा। समाई व बसरी अशिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑडियो और वीडियो ऑडियो और वीडियो एड्स अशिया, यानी कि ऑडियो और वीडियो पेचीदा दर्शी निकात यानी कि शमई व बसरी अशिया जो है, ऑडियो वीडियो एड्स पेचीदा दर्सी निकात को बना देता है,
खाली जगह भरना है, मुश्किल बना देता है, आसान और दिलचस्प बना देता है, और पेचीदा बना देता है। मजीद पेचीदा का मतलब और पेचीदा बना देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा आसान बना देता है। यानी ऑडियो और वीडियो के ज़रिए अगर हम कोई मुश्किल सबक को बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो दिलचस्प और आसान बना देता है। ठीक है। सवाल नंबर 98, स्कूल से मुराद ऐसी जगह है जहाँ बच्चे का इस्तकबाल हो, जहाँ वह एक बेहतरीन इंसान बने और इन्हें अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए तरबियत हासिल हो। इस कॉल में किस बात की तरफ इशारा है? तुफ़्ल मरकूज़ तालीमी निज़ाम तालीम, मुअल्लिम मरकूज़ निज़ाम तालीम, स्कूल मरकूज़ निज़ाम तालीम, या इनमें से कोई नहीं। स्कूल ऐसी मुराद है जहाँ बच्चे का इस्तकबाल हो, तो ये क्या है? तिफ़्ल मरकूज़ निज़ाम तालीम। इसका सही आंसर होगा तिफ़्ल मरकूज़ निज़ाम तालीम। 99, तलबा को ये आज़ादी हो कि वो ख़ुद से तजर्बा करें, अपनी छोटी जमातों में एक दूसरे से बात करें, उस्ताद इनकी हौसला अफजाई करें, तब ये माहौल बनेगा जिसको हम तदरीस कह पाएंगे। तदरीस यानी लर्निंग कह पाएंगे। इस कॉल में किस मुताल्लिक बात की जा रही है? माहौल की तालीम के मुताल्लिक, खेल की तालीम के मुताल्लिक, एक दर्जा के मुताल्लिक, या पूरे स्कूल के मुताल्लिक? यानी यहाँ बात हो रही है पूरे स्कूल के मुताल्लिक। यानी कि तलबा को ये आज़ादी हो कि वो ख़ुद से तजर्बा करें, अपनी छोटी जमातों में एक दूसरे से बात करें, उस्ताद इनकी हौसला अफजाई करें, तब ये माहौल बनेगा। यानी कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा कि यहाँ पूरे स्कूल की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ बात हो रही है एक दर्जा का, यानी एक क्लास रूम का माहौल कैसा होना चाहिए। वहाँ बच्चे जो हैं वो ख़ुद से तजर्बा कर सकें, ऐसा क्लास रूम का माहौल होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ लर्निंग प्रोसेस सही से चल रहा है। ये यहाँ एक दर्जा की बात हो रही है। ठीक है। एक दर्जा कैसा होना चाहिए? यानी कि वहाँ तलबा ख़ुद से तजर्बा कर सकें, छोटी छोटी ग्रोह, यानी बच्चों को छोटी छोटी ग्रोह में बांटा जाना चाहिए, और उस्ताद जो है उन बच्चों की हौसला अफजाई करे, तब उस क्लास में माहौल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ लर्निंग प्रोसेस ठीक हो रहा है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ एक दर्जा के मुताल्लिक बात हो रही है। सवाल नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? साइंस की तदरीस ज़ुबान की तदरीस के मुकाबले ज़्यादा सरगर्मी भरी होती है। यानी क्या कह रहा है कि साइंस की लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़ुबान के मुकाबले ज़्यादा सरगर्म होता है, यानी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि पेचीदा होता है, या ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है साइंस की लर्निंग में ज़ुबान के मुकाबले। क्यों है ऐसा? क्योंकि साइंस की लर्निंग जो है तजर्बात पे मबनी होती है, या दरसियात पे मबनी होती है, या मुशाहदात पे मबनी होती है, या ये तकरीर और तहरीर पे मबनी होती है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि साइंस की जो तदरीस है वो तजर्बात पे मबनी होती है। ठीक है। तजर्बात पे मबनी होती है। अब इक्तबास है यहाँ, दर्जा ज़ेल इक्तबास को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 101 से 105 तक जवाब दीजिए। इक्तबास क्या है? रशीदतुन्निसा की विलादत गदर से चंद बरस पेशतर 1853 में हुई। इनके वालिद का नाम सैयद वहीदुद्दीन था। जब भी आप
किसी भी ई का पैसेज पढ़ रहे हैं तो जो कीवर्ड होता है वहाँ आप उसी को आप अंडरलाइन करते जाइएगा, तो आंसर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर वहीं से बना होता है। ठीक है, चलिए। रशीदुद्दीन निसा की विलादत गदर से चंद बरस बाद 1853 में हुई और इनके वालिद का नाम सैयद वहीदुद्दीन था, जिन्हें हुकूमत हिंद ने शमसुल उलमा और ख़ान बहादुर के खिताबात इनायत किए थे। सैयद वहीदुद्दीन की 3 शादियां हुई थी। पहली बीवी के वतन से 4 लड़के और एक लड़की की पैदाइश हुई। वही लड़की रशीदुद्दीन निशा थी, यानी कि ये पहली बीवी से थी। मौलवी इमदाद इमाम असर रशीदुद्दीन निशा के सौतेले भाई थे। ये मौलवी इमदाद इमाम असर कौन थे? तो ये उर्दू के एक मुहक्किक हैं, है ना, सौतेले भाई थे। रशीदुद्दीन निशा ने इस्लाहुन निसा के नाम से एक नावल लिखा जो 1894 में तबाह हुआ, यानी 1894 में ये नावल छपा था। जुलाई 1931 में रशीदुद्दीन निसा का इंतकाल हो गया। अब सवाल क्या है? रशीदुद्दीन निसा की पैदाइश कब हुई? तो कब हुई थी? 1853 में। सही जवाब होगा 1853। सैयद वहीदुद्दीन रशीदुद्दीन निसा के कौन थे? तो सैयद वहीदुद्दीन कौन थे? तो वालिद थे। ए नंबर सही होगा। रशीदुद्दीन निसा के नावल का क्या नाम है? इस्लाहुन निसा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, इस्लाहुन निसा के नाम से इन्होंने नावल लिखा था। इमदाद इमाम असर से रशीदुद्दीन निसा का क्या रिश्ता था? तो ये कौन थे? बेटी, बहन, शागिर्दा। तो इनमें से कोई नहीं। कौन थे ये? सौतेले भाई थे, है ना, सौतेले भाई थे। तो इनमें से कोई नहीं, जवाब हो जाएगा। रशीदुद्दीन निसा की वफ़ात कब हुई थी? तो 1931 इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 1931 जुलाई 1931 में इनकी वफ़ात, इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, चलिए। अब 106 मादरी ज़ुबान की तदरीस में मिज़म्मर है। मिज़म्मर का मतलब होता है छुपा हुआ या पोशीदा। मुज़म्मर है मादरी ज़ुबान की तदरीस में मादरी ज़ुबान की तदरीस में, यानी मादरी ज़ुबान को पढ़ाने। तदरीस का मतलब होता है टीचिंग, है ना। अंग्रेजी में इसको हम लोग तदरीस को टीचिंग बोलते हैं। तो मादरी ज़ुबान की तदरीस में, टीचिंग में क्या छुपा हुआ है? ख़ुद मुशाहिदा, तलाश व जुस्तजू, मंतकी क़ुव्वत या इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि खुद मादरी ज़ुबान को अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर ख़ुद मुशाहिदा की क़ुव्वत का इजाफ़ा होता है, उनके अंदर तलाशो जुस्तजू के क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है और मंतकी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, मादरी ज़ुबान की तदरीस का मकसद है, यानी बच्चों को मादरी ज़ुबान पढ़ाने का क्या मकसद है? बच्चों को अच्छा मुकर्रिर बनाना, बच्चों में पोशीदा तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना, या बच्चों में तनकीदी सलाहियत पैदा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है, बच्चों के अंदर जो पोशीदा तख्लीकी सलाहियत है, छुपी हुई तख्लीकी सलाहियत है, उसको उजागर करना ही मादरी ज़ुबान पढ़ाने का असल मकसद है, या किसी भी ज़ुबान पढ़ाने का मकसद है। ठीक है,
108 नंबर सवाल, जदीद उसूल तदरीस, न्यू टीचिंग जदीद तदरीसी उसूल, इसको हम लोग बोल सकते जदीद उसूल तदरीस को हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं मॉडर्न टीचिंग प्रिंसिपल। उसूल को प्रिंसिपल है ना, मॉडर्न टीचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक, जदीद उसूल तदरीस के मुताबिक स्कूली सरगर्मी में मरकज़ियत हैसियत रखते हैं कौन? तो उस्ताद, तलबा, कुतुब या तीनों। तो इसका सही आंसर होगा तलबा, यानी कि अभी न्यू एजुकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट है उसे मरकज़ियत हासिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलबा, यानी कि स्टूडेंट। मैं ज़मीर की कौन सी हालत है? अब ये क़वायद से क्वेश्चन है ना। मैं ज़मीर की कौन सी हालत है? ज़मीर ग़ाइब, ज़मीर मुतकल्लिम या ज़मीर हाजिर या इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर होगा ज़मीर हाजिर। ठीक है, यानी जो बात कर रहा है वो हाजिर है। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन, तालीम व तरबियत एक साथ इस्तेमाल होती है, जिससे मुराद है तालीम व तरबियत दोनों है, सिर्फ तालीम है इनमें से सभी या सिर्फ तरबियत? इसका सही आंसर होगा ए, तालीम व तरबियत दोनों है। दर्जा ज़िल में कौन दर्जा ज़िल में से कौन मनक़ुतू है, यानी इनमें से कौन जो है जिसमें नुक्ता नहीं है? मनक़ुतू हरूफ का मतलब होता है जिसमें नुक्ता हो। ठीक है, तो काफ में नुक्ता है, नू में नुक्ता है, बे में नुक्ता है और छोटी काफ में नुक्ता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। दर्जा ज़ेल में कौन मुरक्कब हर्फ है? दर्जा ज़ेल में मुरक्कब हर्फ कौन है? तो बे, पे, फे मुरक्कब हर्फ नहीं है, बल्कि भे मुरक्कब हर्फ है। तो इसका सही आंसर होगा सी। जो लफ्ज़ इस्म के बदले आए उसे क्या कहते हैं? जो लफ्ज़ इस्म के बदले आए उसे क्या कहते हैं? तो इसे ज़मीर कहते हैं। दर्जा ज़ेल में अलीफ लाम गैर मलफूज किसमें है? गैर मलफूज का मतलब तलफ़ुज़, जिसमें तलफ़ुज़ में ना आए, यानी लिखा तो जा रहा है अलीफ लाम, लेकिन पढ़ते वक्त अलीफ लाम ना आए। तो इसमें से कौन सा वो लफ्ज़ है? तो अब्दुल गनी, तो इसमें लाम आ रहा है, अब्दुल गनी लाम आ रहा है, अब्दुल दाल जो है लाम के साथ जुड़ रहा है ना, अब्दुल गनी इसमें लाम आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब्दुस समद यानी दाल जो है स्वाद के साथ जुड़ रहा है, लाम यहाँ छूट जा रहा है, लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, अब्दुस समद। तो ये सही आंसर होगा इसका। इसी तरह देखते हैं अब्दुल गफ़ार, यानी दाल लाम के साथ जुड़ रहा है, अब्दुल गफ़ार। इसी तरीके से इसको पढ़िए अब्दुल ज़ब्बार, इसमें भी दाल जो है लाम के साथ जुड़ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, इल्म का माना अगर जानना है तो अलम का माने क्या होगा? अलम का मतलब होता है झंडा। ठीक है, अलम का मतलब क्या होता है? झंडा। इनमें कौन सी सिफत उर्दू ज़ुबान की नहीं है? तो उर्दू ज़ुबान की सिफत जो है
تو اس میں ان میں سے کون سی صفت اردو زبان کی نہیں ہے؟ تو اس میں شیریں یہ تو اردو زبان کی صفت ہے، لطافت یہ بھی اردو زبان کی صفت ہے، مقبولیت یہ بھی اردو زبان کی صفت ہے، عصبیت یہ صفت اردو زبان کی نہیں ہے۔ عصبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعصب برتنا، تعصب برتنا، تو یہ اردو زبان کی صفت نہیں ہے، یعنی کہ اے، بی اور ڈی یہ تینوں اردو زبان کی صفت ہے۔ تو صحیح آنسر اس کا کیا ہوگا؟ سی ہوگا۔ اردو میں مفرد حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 36۔ اردو میں حروف تہجی میں مرکب حروف کی تعداد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح ہوگا 15۔ عرف کس کی قسم ہے؟ عرف ضمیر کی قسم ہے؟ نہیں۔ مضاف کی قسم ہے؟ نہیں۔ علم کی قسم ہے؟ نہیں۔ یہ اسم کی قسم ہے، اسم موصول کی، یہ اسم کی قسم ہے، موصول یہاں نہیں ہوگا، اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی۔ ٹھیک ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو، غزل کے آخری شعر کو، غزل کے دوسرے شعر کو، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہوگا بی، غزل کے آخری شعر کو۔ مادری زبان کے معلم کو ہونا چاہیے، سوال نمبر 121، مادری زبان کے معلم کو ہونا چاہیے ہر بات میں بچوں کو ٹوکنے والا؟ نہیں۔ زبان سکھاتے وقت بچوں کو ٹوکنے والا، زبان سے زیادہ تہذیب سکھانے والا، یہ صحیح آنسر ہے، زبان سے زیادہ تہذیب سکھانے والا، یعنی جو زبان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، یعنی مادری زبان اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہماری تہذیب کیا ہے وہ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سکھانا ہے، تو زبان کے ساتھ تہذیب سکھانے والا۔ اگر جب بچوں کو اگر ہم زبان سکھاتے ہیں اور بچوں کے اندر تہذیب ہی سلیقہ ہی نہ ہو تو پھر زبان وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبان نہیں سیکھ پایا ہے، تو زبان کے سے زیادہ تہذیب سکھانے والا یہ مادری زبان کے معلم میں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں بچوں کا ہمدرد اور درست لکھا ہوا ہے نا، اگر دوست بھی ہوگا تو بھی نہیں، ایک اس معلم جو ہے بچوں کا دوست نہیں ہو سکتا، ہمدرد ہو سکتا ہے لیکن دوست نہیں ہو سکتا، ایک دائرہ ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ، ٹھیک ہے، تو دوست ایک معلم نہیں ہو سکتا ہے، ایک معلم بچوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے لیکن دوست نہیں ہو سکتا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ چلیے 122، قواعد سکھانے کا عمل زبان کا اہم ترین جز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے قواعد سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے قواعد سکھانا، یہ زبان کا استعمال سیکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ زبان میں معنویت کے لیے ضروری ہے، معنویت کے لیے ضروری ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی، زبان کا استعمال سیکھنے کے لیے قواعد کا سکھانا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 123، جدید طریقہ تعلیم زور دیتا ہے، کس بات پہ زور دیتا ہے؟ نقل کرنے پہ زور دیتا ہے، رٹنے پہ زور دیتا ہے، تخلیقیت پہ زور دیتا ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی، تخلیقیت پہ زور دیتا ہے۔ 124، سوال نمبر 124، آپ کے خیال میں تدریس کیا ہے؟ ایک پیشہ ہے، ایک مذاق ہے، ایک ہنر ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو تدریس کیا ہے؟ ایک پیشہ، ضروری یہ نہیں ہے، ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ جو سرکاری ٹیچر ہو یا پیسے کے لیے ہی پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، پڑھانا ایک کیا ہے؟ ایک ہنر ہے، ایک ہنر ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ سی، ایک ہنر ہے۔ ہمارے ملک میں نافذ درسیاتی تعلیمی خاکہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 2013 کے حساب سے یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، ابھی
اگر درسیاتی تعلیمی خاکہ نیو کا اگر دیکھا جائے تو 2023 لاگو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں دو چیز ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ دھیان دینا ہے۔ دو چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے درسیاتی خاکہ، اور ایک اور ہے تعلیمی پالیسی۔ ایک ہوتا ہے پالیسی، دونوں میں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ قومی درسیاتی خاکہ لکھا رہے گا اور قومی تعلیمی پالیسی، دونوں الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں قومی تعلیمی پالیسی کی، تو قومی تعلیمی پالیسی جو ہے اب تک جو ہے، اچھا اس کو شارٹ میں قومی تعلیمی پالیسی، اس کو NEP بھی بولتے ہیں، NEP ہے نا، اور اس کو بولتے ہیں NCF، نیشنل کیریکولم فریم ورک، نیشنل کیریکولم فریم ورک اس کا فل یہ ہوگا، اور NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی، ٹھیک ہے۔ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اب کیسے الگ ہے؟ تو قومی تعلیمی پالیسی کیا ہے اور قومی درسیاتی خاکہ کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ قومی تعلیمی پالیسی جو ہے، NEP جو ہے، یہ پورے ملک کی تعلیمی نظام کیسا ہوگا اس بات پہ بات کرتا ہے نا۔ پورے ملک کا تعلیمی نظام کیسا ہوگا اس پہ بات کرتا ہے NEP، ہے نا، اسکول سے لے کے کالج تک کا۔ اور قومی درسیاتی خاکہ یعنی کہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کیا کیا پڑھایا جائے گا پورے ملک میں، اس کا سلیبس کیا ہوگا، اس بات پہ بحث کرتا ہے قومی درسیاتی خاکہ، یعنی سلیبس پہ، ٹھیک ہے، سلیبس پہ بات کرتا ہے قومی درسیاتی خاکہ۔ اور قومی تعلیمی پالیسی پورے ملک کی تعلیمی نظام پہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اس میں بات ہوتا ہے کہ ملک کا تعلیم کا نظام کیسا ہوگا، اسکول اور کالج کا ڈھانچہ کیسا ہو سکتا ہے، کون سی زبان کی پڑھائی ہونی چاہیے، یہ قومی تعلیمی پالیسی بات کرتا ہے۔ اور قومی درسیاتی خاکہ یہ بتائے گا کہ بچوں کو جو زبان سلیکٹ ہوا ہے قومی تعلیمی پالیسی میں اس کو کیسے پڑھانا چاہیے، ہے نا، یا کتابیں کیسی ہونی چاہیے، سلیبس کیا ہونا چاہیے، یہ بات کرتا ہے قومی درسیاتی خاکہ، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور جان لیجئے کہ قومی تعلیمی پالیسی جو ہے ابھی تک بھارت میں سب سے پہلے نافذ ہوا تھا یہ 1968 میں، پھر 1986 میں، اور اسی کو ترمیم کیا گیا تھا 1992 میں، پھر 2020 میں بنی ہے نئی تعلیمی پالیسی، ہے نا۔ یعنی کہ اب تک جو ہے 3 بار یہ قومی تعلیمی پالیسی ہندوستان میں ہمارے ملک میں بنا ہے۔ 86 والا ہی ترمیم ہوا تھا 1992 میں، یہ یاد رکھنا، کئی بار اس کو پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا قومی تعلیمی پالیسی اگر بنی ہے تو 1968 میں بنی ہے، اور دوسری بنی تھی 86 میں، اور 2020 میں پھر بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم NEP کی بات کرتے ہیں، اس کا بات کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، NCF کی، تو NCF سب سے پہلے اس کے جب یہ نافذ ہوا
1968 में। तो फिर सिलेबस तैयार हुआ उसके अकॉर्डिंग 1938, कौमी तालीमी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1988 में, और 1992 के वाला जो है वो 2000 में। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसका, तो अगर हम बात करते हैं एनसीएफ की, एनसीएफ का तो कब कब आया है? 1988 पहला, फिर 2000 ईस्वी 2000 में, फिर 2005 में, और अभी 2023 में। ठीक है, ये याद रखना है। एनसीएफ 88, 2000, 2005 और 2023, और एनईपी 68, 86 और उसी को तरमीम हुआ 92 और फिर 2020। ये याद रखना। ठीक है, चलिए। तो 125 सवाल में क्या बोल रहा है? हमारे मुल्क में नाफिज दरसियात की तालीमी खाका को क्या कहते हैं? यानी यहाँ बात हो रही है एनसीएफ की, है ना, एनईपी की बात नहीं हो रही है। तो ये 2013 के अकॉर्डिंग कौन सा कौमी दरसियाती खाका चल रहा था? तो 2005 वाला। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है? 2023 वाला। ये कब, ये किसके अकॉर्डिंग है? तो 2020 के अकॉर्डिंग है। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे सवाल है 127। दर्जा झेल में इसमें सिफत तलाश कीजिए। इसमें सिफत यानी खूबी या खामी या कैफियत को जाहिर करता है, उसे हम इसमें सिफत कहते हैं। वो इसमें खूबी, खामी या कैफियत को जाहिर करे। तो गोरैया नहीं होगा, सालिम अली ये भी नहीं होगा, ये तबीब ये भी नहीं होगा। कौन होगा? बचपन होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बचपन। लफ्ज़ हलाक से इसमें फ़ाइल बनाइए। लफ्ज़ हलाक, हलाक का मतलब होता है मरना, और इसमें फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला, और मफ़ूल जिस पे काम हुआ, काम हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल यानी काम, फ़ाइल जो काम करने वाला है, और मफ़ूल जिस पे काम मुकम्मल हुआ। ठीक है, चलिए। तो लफ्ज़ हलाक, हलाक का मतलब होता है मरना। तो इसमें फ़ाइल पूछ रहा है, तो इसका होगा मुहलिक। मुहलिक, मुहलिक का मतलब होता है, मुहलिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ख़तरनाक हो, जिससे लोग हलाक हो जाएं। जैसे होता है ना बीमारी, बोला जाता है कि इसको या फलां को मुहलिक बीमारी हो गई है, यानी ऐसी बीमारी जो जानलेवा है। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? मुहलिक, मफ़ूल कहलाएगा। ठीक है, मुहल्लिक। 129 तवक्का से इसमें मफ़ूल बनाइए। तवक्का से इसमें मफ़ूल, मफ़ूल यानी जिस पे काम, यानी तवक्का का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद है ना, तवक्का का उम्मीद। तो इसका होगा मुतवक्का। इसका सही आंसर होगा मुतवक्का। मफ़ूल इसका क्या होगा? तवक्का का मफ़ूल क्या होगा? मुतवक्का। ठीक है, मुतवक्का क्यों होगा? क्योंकि तवक्का का मतलब होता है उम्मीद, और मफ़ूल क्या भी हम बताएं, जिस पे काम मुकम्मल हुआ। यानी मुतवक्का किस पे, जिस पे किया जा रहा है ना, यानी तवक्का जिस पे किया जा रहा है उसे हम मुतवक्का कहेंगे। ठीक है, तवक्को जिस पे यानी उम्मीद जिस पे किया जा रहा है उसे हम मुतवक्का कहेंगे। एक जुमला देखिए, हामिद से हमको ऐसी तवक्का नहीं थी। ये जुमला है। ठीक है, अब इसमें देखिए तवक्का यानी तवक्का किस पे किया जा रहा है?
किस पे किया गया है, हामिद पे, ठीक है। तो इसीलिए मुतवक्का यानी हामिद यहाँ क्या हो जाएगा, मुतवक्का यानी तवक्का किया गया। अगर देखा जाए तो हामिद यहाँ क्या है, मुतवक्का है, यानी तवक्का किस पे किया जा रहा है, हामिद पे, यानी मुतवक्का इसी पे तवक्का किया जा रहा है, ठीक है। तो मफूल तवक्का का मफूल होगा मुतवक्का, ठीक है। लफ्ज़ अर्ज से इसमें सिफत बनाइए, इसका सही आंसर होगा बी, अर्जी। मंदरजा झेल में इम्तहान लेने का सबसे अच्छा तरीका होगा, क्या होगा, बच्चों को सवालात और कापियाँ घर से लिखकर लाने को दी जाएं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को दर्जा में ही खड़ा कर पूछ लिया जाए, ये इम्तहान का नमूना नहीं है। बच्चों को लिखवा कर बतौर रिकॉर्ड रख लिया जाए, ये सही है। यानी कि इम्तहान हम ले रहे हैं तो बच्चे से हम कॉपी लिखवाएंगे और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है वो हम रिकॉर्ड रखेंगे ताकि उनकी खामियों को निशानदेही कर सकें, ठीक है। सबक के साथ ही मुश्किलात की निशानदेही और तलाफ़ी कर दी जाए, ये भी इम्तहान का नमूना नहीं है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है इम्तहान की। 132 मंदरजा झेल में अच्छा स्कूल कौन होगा, जहाँ निसाब के अलावा बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का मौका दिया जाए, जहाँ पूरा निसाब हर साल ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ हर बच्चे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जहाँ बच्चे उस्ताद से डरे। तो इसका सही आंसर होगा 132 का ए, ठीक है। क्या होगा, ए। जहाँ निसाब के अलावा बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का मौका दिया जाए। कुछ करने से मुराद ये नहीं कि बच्चे शरारत करें, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी, खेल कूद, ये सारा कुछ, ठीक है। 133 सदर मुदर्रिस की ज़िम्मेदारी में आप किसे नामुनासिब समझते हैं। सदर मुदर्रिस यानी हेडमास्टर स्कूल का, उसकी ज़िम्मेदारी में किसे आप नामुनासिब समझते हैं। तो रोज़ाना स्कूल जाने को, ये रोज़ाना ऑफ़िस के कागज़ात दुरुस्त करने को, रोज़ाना उस असातिज़ा से लड़ने को, या रोज़ाना तदरीस करने को। तो इसका सही जो आंसर होगा सी, ये लड़ाई झगड़ा जो है नहीं होना चाहिए टीचर में। 134 प्राइमरी सतह पर लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों के साथ लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज़्यादा ज़हीन होती हैं, दोनों की नशोनुमा एक साथ ज़रूरी है, या इनमें से सभी। ये सही आंसर है, सी, यानी लड़के और लड़कियां दोनों की नशोनुमा एक साथ होती है और दोनों की नशोनुमा एक साथ होना ज़रूरी है। इसीलिए प्राइमरी सतह पर लड़के और लड़कियों का स्कूल अलग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ खेलना क्या है, मौन तदरीसी अशिया, हम निसाबी सरगर्मी या तदरीसी सरगर्मी, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा हम निसाबी सरगर्मी, यानी कि निसाब में जो हमारा सिलेबस है, जो कैरिकुलम है, उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो ये हम निसाबी सरगर्मी कहलाएगा, पढ़ाई के साथ खेलना। दर्जा झेल अशार को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ 136 से 140 सवालों का जवाब दीजिए। क्या है, एक नज़म का एक टुकड़ा है ना। सजरे तूर का इस बाग में पौधा ही नहीं, गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं, अब कहाँ जहन में बाकी है बुराको रफ, टकटकी बंध गई है कौम की अंजुमन की तरफ, हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज सेराज का रंग, मुझ पे कुछ वजह एताब आपको अम्मी जान नहीं, नाम ही नाम है वरना मुसलमान नहीं, नाम ही नाम है वरना मुसलमान नहीं, मेरे इस्लाम को 21 माजी समझो, हंस के बोली तो फिर मुझको भी राजी समझो। ये नज़म किसका है, अकबर इलाहाबादी का
कौन सी नज़म से लिया गया है? तो बर्क़ कलीसा से। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है? मज़कूरा बाला अशार किस शायर की तख्लीक है? तो जवाब हो जाएगा ए नज़ीर अकबर आबादी। खालिद जाबाज़ से कौन मुराद है? तो यहाँ खालिद जाबाज़ से मुराद है खालिद बिन वलीद यानी सैफुल्लाह बी। हाफिज़ शराज कौन थे? तो ये फ़ारसी के शायर थे। शायर ने अम्मी जान कह के किसको मुखातिब किया है? मैडम को, महबूबा को या कलीसा के मिस को? तो सी होगा कलीसा के मिस को। आखिरी शेर में हंस के बोलने वाली कौन थी? मिस कलीसा। शायर की उस्ताद, अंग्रेज़ अफसर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मिस कलीसा। तबा का वाहिद क्या होगा? तो इसका वाहिद होगा तबीयत। ठीक है, तबीयत का जमा होता है तबा। ठीक है, तबाअत से इसमें मफ़ूल बनाइए तो मुतब्बा यानी काम मुकम्मल, इसी पे हुआ, छप गया। तबाअत का मतलब छपना। दर्जा झेल में नून गुन्ना की आवाज़ किस में नहीं है? खुरामा, आसमां, कुआं, बदअमा। तो आसमान को हम लोग नू के साथ भी लिखते हैं ना, आसमान भी लिखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी। दुनिया की जदीद ज़ुबानों में कौन सी ज़ुबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के हैं? तो हम लोग जानते हैं उर्दू का क्या माने होता है? लश्कर। सही जवाब बी। उर्दू की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये ज़ुबान आसान है, इसका रिश्ता आवाम से है, ये मजहबी ज़ुबान है, ये हिंदी से मिलती जुलती है। 145 का हम जवाब नहीं बताएंगे, आप हमको बताइएगा कमेंट में कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, दर्जा 1 से 8 में मरबूत निज़ाम तालीम वकालत करता है कमज़ोर बच्चों की तालीम पर, माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ तालीम पर, लड़कियों की तालीम पर या सिर्फ लड़कों की तालीम पर? तो इसका सही आंसर होगा माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ, यानी कोई तरह का अगर हैंडीकेप है बच्चा तो उसको आम बच्चों के साथ मिला करके पढ़ाने पे जोर देता है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम है बच्चों के लर्निंग के लिए। क्या है? पढ़ने की माजूरी, लिखने की माजूरी या सीखने की माजूरी या तहफ़ीम की माजूरी? तो इसका सही आंसर होगा सीखने की माजूरी। क्यों होगा? क्योंकि डिसलेक्सिया में बच्चे जो है ना, वो जैसे डी है और बी है, तो बी को डी के जैसा लिख देगा या डी को बी के जैसा लिख देगा, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो ये उसमें लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है बच्चे में, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। मंदरजा झेल में से किसे हम पैदाइशी मुहर्रिक तस्लीम करते हैं? पैदाइशी मुहर्रिक यानी कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो बच्चे में पैदाइशी होता है? तो गुस्सा, तारीफ़, खेलना या सोना? तो इसका सही सटीक आंसर होगा सोना। ये पैदाइशी होता है। गुस्सा ये एक तरह से फीलिंग है जो बाद में आता है। तारीफ़ ये भी एक फीलिंग है। खेलना ये बच्चे सीखते हैं। तो सोना जो है ये जन्मजात होता है। खेल एक हम निसाबी सरगर्मी है जिसका मकसद है स्कूल में खेल का माहौल बनाना, दर्जा में अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, बच्चों की जिस्मानी क़ुव्वत को फ़रोग़ देना या इंसानी हमदर्दी पैदा करना। 149 का भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में बताइएगा। लिसानी 50 नंबर क्वेश्चन, लिसानी फार्मूला में बिहार में कौन कौन सी ज़ुबान राइज है? तो हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू ये बिहार में राइज है। इसका सही जवाब ये होगा। तो ये रहा 60 क्वेश्चन का, ये बिहार टेट 2013 का क्वेश्चन था और मैंने ये आप तक आपके लिए इसे मैंने हल किया है। और ये क्वेश्चन जे टेट में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है
اس کے لیے یہ بہت مددگار ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ ہم جلد ہی JTET کا قواعد اور چائلڈ پیڈاگوجی CDP اردو CDP کا چھوٹا چھوٹا کلاس ہم شروع کریں گے. تو ابھی تک جس نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کر لے، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک پہنچ جائے. اور اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.